Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Okay. Now today we study a lesson for class 10th students from first flight book. It is the second lesson named Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Now, before begin this chapter, I will give you introduction. Nelson Mandela. Nelson Mandela was a very famous personality. He belongs to South Africa. South Africa is a country located in African continent. It is in the southern part of Africa. Now, Long Walk to Freedom. Long Walk to Freedom is the name of autobiography of the Nelson Mandela. What is an autobiography? Do you know? Okay, I will tell you. An autobiography is the life story of a person written by the person himself. Means the life story of a person written by the person himself is called an autobiography. Now, before proceeding this chapter, we would like to know about Nelson Mandela. He was addressed as Madiba Josa clan name. Nelson Mandela का clan name जोसा फैमिली में मडीबा के नाम से जाना जाते थे. He was addressed as Madiba. उनको प्यार से लोग मदीबा कहते थे. He belonged to the Thembu royal family. In the South Africa, there was a royal family and named Thembu. So Nelson Mandela belonged to the Thembu royal family. Next, he became the first elected president of South Africa on 10th May 1994. साउथ अफ्रीका में ये फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाए गए और वो भी ब्लैक इलेक्टेड प्रेसिडेंट. ही वॉज नोन एज फादर ऑफ द नेशन इन साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका में प्रेम से प्यार से लोग इन्हें फादर ऑफ द नेशन के नाम से जानते थे. इनको राष्ट्रपिता की संज्ञा दी गई साउथ अफ्रीका में. यू आल्सो नो दैट इन आवर इंडिया फादर ऑफ नेशन इज गांधी जी. आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे भारत देश में फादर ऑफ द नेशन की संज्ञा महात्मा गांधी जी को दी गई है. ठीक वैसे ही साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को फादर ऑफ द नेशन के नाम से जाना जाता है. He served prison for 30 years for the abolition of apartheid, racial discrimination on the basis of the color of the skin. फादर ऑफ द नेशन की संज्ञा क्यों दी गई है? क्योंकि आप जानते हैं कि भारत देश को आजाद कराने में महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान था. इसलिए भारतवासियों ने उन्हें राष्ट्रपिता की संज्ञा दी. ठीक वैसे ही साउथ अफ्रीका को अपार्थेड सिस्टम से मुक्त कराने में नेल्सन मंडेला का बहुत बड़ा योगदान था. It is a racial discrimination on the basis of the color of skin. यहां पर काले और गोरे रंग का भेदभाव था. जो ब्लैक स्किन्स लोगों के प्रति व्हाइट स्किन्स पीपल्स बहुत ही ज्यादा हेट किया करते थे. So Nelson Mandela prison for 30 years. It is a long period for the abolition of apartheid. Okay. Now we will start the chapter Nelson Mandela Long Walk to Freedom. We discuss the hard words, their meanings and explanation. Okay. Open your book. Page number 16.
10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. ये उस समय की बात है जब अफ्रीका में 1994 में चुनाव हुआ और इनॉग्रेशन टाइम आया, शपथ लेने का समय आया प्रेसिडेंट के. On the day 10th May dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inaugurations. 10th May का वो दिन था, बहुत ही सुहावना दिन था, बहुत ही अच्छा दिन आया, क्योंकि पिछले कई दिनों से, पिछले कई वर्षों से हम लोग to be surrounded by closely by to pay their respects and the world leaders. The inauguration would be the largest gathering ever of the international leaders on South Africa soil. और 10th मई का वह दिन क्यों इतना खूबसूरत था? क्योंकि इंटरनेशनल लीडर्स साउथ अफ्रीका की उस धरती पर आए थे, मीन्स देश विदेश के लोग आज एकत्रित हुए थे. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. और यह सेरेमनी साउथ अफ्रीका में एक एम्पी थिएटर में रखी गई थी. इट इज अ लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया. प्रिटोरिया में एक बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग एम्पी थिएटर. व्हाट इज एम्पी थिएटर? एम्पी थिएटर इज अ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ विद मेनी rows of seats rising steps. You can say in other words an open air theater. Means खुले प्लेस में एक ऐसा थिएटर बनाया गया था जहां पर कोई छत नहीं थी, बैठने के लिए केवल सीट वगैरह लगी थी. And it is a very lovely buildings made by the lovely sandstones. For decades this had been the seat of white supremacy. और आज यह खूबसूरत दिन इसलिए था क्योंकि पिछले कई दशकों से, for decades means a period of 10 years, 10 वर्ष का समय decades कहलाता है. and here for decades, कई decades की बात हो रही है, कई दशकों की बात हो रही है. For decades this had been the seat of white supremacy and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. और आज यह खूबसूरत दिन है जहां पर देश विदेश के नेता, विधायक, मंत्री सभी आए हुए हैं. एंड इट इज द इन अ रेनबो गैदरिंग. जैसे इंद्रधनुष में कई 7 कलर्स होते हैं अलग अलग प्रकार के, ठीक वैसे यहाँ पर अलग अलग देश के लोग आए हुए हैं और एक स्थान पर साउथ अफ्रीका में एकत्रित हुए हैं. एंड इट इज द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट. और यह है साउथ अफ्रीका के नॉन रेशियल गवर्नमेंट को इंस्टॉल होने में, अर्थात उसके शुरुआत हो रही है. ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वाज accompanied by my daughter Zinani. Nelson Mandela said that on that lovely autumn day I was accompanied by my daughter Zinani. यह इतना खूबसूरत दिन, इस खूबसूरत दिन में I was accompanied by my daughter Zenani. मेरे साथ मेरी छोटी बेटी ज़ेनानी भी है. On the podium, Mr. de Klerk was first sworn in as second deputy president. सबसे पहले साउथ अफ्रीका के उस नॉन रेशियल गवर्नमेंट ओपनिंग में ऑन द पोडियम मिस्टर de Klerk was first sworn in as second deputy president. सबसे पहले स्टेज पर मिस्टर de Klerk के द्वारा शपथ ली जा रही है on as a second deputy president. सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में सबसे पहले पोडियम पर मिस्टर de Klerk का आगमन हुआ और उन्होंने शपथ लिया. Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president when it was my turn. I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. और इसके बाद Thabo Mbeki was sworn in as the first deputy president. इसके बाद
थाबो म्बेकी, जो कि फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में पोडियम पर आए और शपथ लिए। एंड व्हेन इट वाज माय टर्न आई प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। और जब मेरा नंबर आया तो मैंने भी यह आई प्लेस टू ओबे, मैंने भी यह प्रॉमिस किया टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति अपनी शपथ ली, एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, और साउथ अफ्रीका के लोगों की हमेशा सेवा करने के लिए मैंने यह प्रण किया। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, सभा में उपस्थित जो आए हुए गेस्ट थे, इंटरनेशनल गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, और जो दूर दराज दुनिया भर के देशों में बैठे हुए लोग देख रहे थे। टू द assembled guests and watching world, I said that today all of us do by our presence here. नेल्सन मंडेला ने बताया कि हमने अपने आए हुए अतिथियों और दूर बैठे संसार में देखने वाले जो लोग थे, हमें जो उस समय साउथ अफ्रीका में लाइव देख रहे थे, उनको मैंने स्पीच में एक्सप्लेन किया। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर confer glory and hope to newborn liberty। आज हम लोग यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं, it is a to give glory and hope to newborn liberty। यहाँ पर एक नए राष्ट्र का उत्थान हो रहा है, out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, It was of an extraordinary human disaster that lasted too long। एक नए extraordinary human disaster की शुरुआत हो रही है, that lasted too long, जो कि एक लंबे समय से नहीं था। We who were outlaws not so long ago had today been given the rare privilege to the host of the nations of the world on our own soil। हम जो कि पिछले कई वर्षों से इन सभी देशों से अलग हो जाया करते थे, अलग रहते थे, हमारा कोई भी देश साथ नहीं दिया करता था। We were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to the host to the nations of the world on our own soil। आज हमें यह मौका मिला हुआ है कि इन सभी अंतरराष्ट्रीय देशों के लोग हमारे यहाँ आए हुए हैं और उनको मुझे होस्ट करने के लिए मौका मिला हुआ है। टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल, हमारी अपनी मिट्टी में, हमारे अपने देश में इन सभी अंतरराष्ट्रीय देशों को होस्ट करने का मुझे जो मौका मिला है, आज बहुत ही बड़े गर्व की बात है। वी थैंक ऑल आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोसेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल is common victory of justice for peace and for human dignity। और यह हमारी अपनी जीत नहीं है, हमारे साउथ अफ्रीका में it is a victory of all common victory of justice, यहाँ पे न्याय की जीत हुई है, for peace शांति की जीत हुई है, and for human dignity और यहाँ पे human respect की भी जीत हुई है। We have at last achieved our political emancipation। Emancipation means freedom from restriction। We have at last achieved our political emancipation, और अंततः हमने political freedom from restriction से आजाद हुए हैं। जो political environment में black peoples को नहीं एंट्री दिया जाता था, आज हम लोग वहां पर उस बैरियर को खत्म कर चुके हैं। We place ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। We place ourselves, और हम यहाँ आज से शपथ लेते हैं, to liberate all our people from the continuing bondage of poverty। अब हमारे इस देश में कोई भी व्यक्ति के प्रति डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, भेदभाव नहीं रहेगा, ना ही बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखा जाएगा, न गरीबी के प्रति, न जेंडर के प्रति, न ही अदर डिस्क्रिमिनेशन, न ही किसी अन्य तरीके से।
Never, 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 and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. और आज के बाद कभी 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 नहीं ऐसा होगा. Never it shall be that this beautiful land will again experience the oppression of the one by another. और आज से हम लोग यह शपथ लेते हैं कि कभी नहीं, दोबारा कभी नहीं हम अपने ब्लैक पीपल्स एंड व्हाइट पीपल्स के बीच किसी भी प्रकार का ऐसा भेदभाव रखा जाएगा. The sun shall never set on so glorious a human achievement. इसका सीधा तात्पर्य है कि आज से किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव एक दूसरे से व्यक्ति नहीं रखेंगे. It means the sun shall never set on so glorious a human achievement. आज की इस जो मानव उपलब्धि हुई है, मानवीय उपलब्धि पर सूर्य कभी नहीं सूर्यास्त होगा. Let freedom reign. God bless Africa. इसलिए स्वतंत्रता की जय हो. God bless Africa. अफ्रीका की जय. A few moments later, we all lifted our eyes in awe. A-W-E. What is awe? Awesome. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South Africa jets, helicopters, and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. और कुछ ही क्षणों के बाद जैसे ही नेल्सन मंडेला ने बताया कि जैसे ही मेरा स्पीच खत्म हुआ, a few moments later, कुछ ही देर के बाद हमने अपनी आंखों से ही आसमान में साउथ अफ्रीका के जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, ट्रूप कैरियर्स यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर उड़ते हुए देखा. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy and to a new government that had been freely and fairly elected. यह केवल मिलिट्री फोर्स का प्रदर्शन नहीं था. साउथ अफ्रीका के मिलिट्री फोर्स का यह केवल प्रदर्शन करना नहीं था साउथ अफ्रीका के मिलिट्री पावर्स का, बट आल्सो इट इज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी. यहां पर मिलिट्री का डेमोक्रेसी के प्रति लॉयल्टी होना भी दर्शाना था. एंड टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड. एक ऐसी गवर्नमेंट जो अभी अभी बिल्कुल इलेक्ट होकर के तैयार हुई है, नया नया इलेक्शन होकर के कंप्लीट हुआ है. नेक्स्ट, only moments before the highest generals of the South African Defence Force and police, their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and praised their loyalty. और इसके एक ही क्षण बाद, only moments later, एक ही क्षण बाद, the highest general of South Africa military force and the police, साउथ अफ्रीका के मिलिट्री फोर्स का हाईएस्ट जनरल और पुलिस जिसके दियर चेस्ट बेडेक्ड विद रिबन्स, जिसके चेस्ट पर रिबन्स लगे हुए थे बहादुरी के, एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाय, और मेडल्स लगे हुए थे कंधे पर जो कि उसकी वीरता के परिचायक थे. दे वर सैल्यूटेड मी एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी. उन्होंने हमें सैल्यूट किया और अपने लॉयल होने के लिए यह प्रदर्शित किया कि मैं देश के प्रति समर्पित हूं. I was not unmindful of the fact that so many years before they would not have saluted but arrested me. और नेल्सन मंडेला ने बताया कि मैं उस समय बहुत ही आश्चर्य पड़ गया था क्योंकि ये व्यक्ति आज हमें सैल्यूट कर रहे थे और कुछ वर्ष पहले यही हमें अरेस्ट करने के लिए आते थे. It is the fact that so many years before they would not have saluted but arrested me. कुछ वर्ष पहले यही व्यक्ति हुआ करते थे जो मुझे सैल्यूट नहीं करते थे, ये मुझे अरेस्ट करने के लिए आया करते थे. And now this times they were saluted me. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. और अंततः आसमान में इम्पाला जेट्स के द्वारा एक चेवरॉन बनाया गया. चेवरॉन मींस अ पैटर्न इन द शेप ऑफ वी.
जेट प्लेन्स वी के शेप में आसमान में उड़ते हुए दिखाई दिए, इंग्लिश अल्फाबेट के वी के शेप में उड़ते हुए दिखाई दिए। जैसे आप लोग 26 जनवरी और 15 अगस्त को आप लाल किले में जब पीएम झंडा को फहराते हैं तो वहां पर डिफेंस के लोग अपना प्रदर्शन करते हैं। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the New South African flag. और अंततः वो जो इम्पाला जेट्स थे उन्होंने वी के शेप में उड़ते हुए ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, इट इज द कलर ऑफ न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, इस अलग अलग तरीकों के रंगों में धुएं को छोड़ते हुए आगे बढ़ गए। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems. वह दिन निश्चित रूप से मेरे लिए बहुत ही सुहावना था, because there were the playing of our two national anthems. उस दिन हमारे राष्ट्र में 2 नेशनल एंथम गाए गए, and the vision of white singing Kosi Sikli E Africa and black singing Die Step, the old anthem of the republic. White people singing Kosi Sikli E Africa, जो सफेद व्यक्ति थे वो अपने नेशनल एंथम को गाते थे, कॉसी सिकली अफ्रीका, एंड ब्लैक पीपल सिंगिंग दाई स्टेम्स, देयर वर द टू, इट इज द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। ये हमारे रिपब्लिक का नेशनल एंथम था, ये हमारे देश को स्वतंत्र होने पर नेशनल एंथम गाया गया। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised. हालांकि कोई भी व्यक्ति एक दूसरे नेशनल एंथम के लिरिक्स को नहीं समझता था, but they would soon know the words by heart. लेकिन उनके वर्ड्स को वह बहुत ही आसानी से समझते होंगे। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. इस इनॉग्रेशन के दिन I was overwhelmed with a sense of history. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि इस शुभ अवसर पर इनॉग्रेशन के दिन मुझे अपने राष्ट्र की पूरी हिस्ट्री मेरे माइंड में चल रही थी। In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War, and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. इन्होंने बताया, I was in the first decade of the 20th century. 20वीं शताब्दी के पहले सदी में, मीन्स 1900 to 1910, 1900 से 1910 वर्ष के शताब्दी में, आफ्टर द बिटर एंग्लो-बोअर वॉर, मीन्स एंग्लो-बोअर वॉर मीन्स इंग्लैंड अफ्रीका वॉर, इंग्लैंड और अफ्रीका की वॉर के बाद 1900 और 1910 के दशक के बीच, इट इज द टाइम ऑफ बिफोर माई ओन बर्थ, या मेरे जन्म से कुछ समय पहले की बात करता है, या मेरे जन्म इस समय नहीं हुआ था, नेल्सन मंडेला ने बताया। The white-skinned peoples of South Africa patched up their difference and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. White colored peoples जो थे, ये black colored peoples पे एक बैरियर लगा दिए। It is a system of racial domination, political domination, color domination on their own land. उन्हीं के ही आवास स्थान पर, उन्हीं के ही प्लेस पर भेदभाव उत्पन्न कर दिए व्हाइट पीपल्स ब्लैक पीपल्स के प्रति, आना जाना बातचीत करना सब कुछ बंद हो गया। The structure they created formed the basis of the one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. Now, in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, फिर आगे बताया गया, the structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known.
उस समय व्हाइट पीपल और ब्लैक पीपल्स के प्रति बहुत ही भेदभाव हो गया। रिस्ट्रिक्टेड प्लेसेस पर ब्लैक पीपल्स का आना जाना बंद कर दिया गया। एंड इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, मींस 1990 to 2000 ईयर्स में, माय ओन 8th डिकेड एज अ मैन, जब मेरा 8th डिकेड चल रहा था, नेल्सन मंडेला ने बताया कि उस समय मैं लगभग 80 वर्ष के करीब था। दैट सिस्टम हैड बीन overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the colors of their skin. उस समय मैंने इस सभ्यता, इस प्रकार के भेदभाव को खत्म कर दिया एंड रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर्स ऑफ देयर स्किन। और व्यक्ति एक दूसरे के प्रति ब्लैक एंड व्हाइट कलर्ड स्किन का भेदभाव भूल करके they were doing the respect one and another, एक दूसरे का मान सम्मान करने लगे। And in the time of 1994 when he became the first elected president of साउथ अफ्रीका, जब वो भारत के पहले साउथ अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नियुक्त किए गए। Okay, now this is the first part of your chapter. I hope it is clear. Next we will study in the next video.